we understood the two concepts till now. One, meaning of indifference curve, and second, meaning of budget line. Indifference curve is a curve which shows all those combinations of two commodities which gives the same level of satisfaction to consumer, and therefore consumer is indifferent between those combinations. There are millions of such combinations, right, on a given curve. Such curve is called as indifference curve, ISO utility curve, या equal utility curve. These are the different names. ISO means equal, right, utility. The curve giving equal utility is called as ISO utility or indifference curve. Then we understood, in order to gain one additional unit of a commodity, keeping the satisfaction same, the consumer has to decrease or sacrifice the consumption of other commodity. He cannot keep the consumption of other commodity same and increases the other consumption. In that case, the total quantity will be more, and in that case, right, एक gain हो रहा है, but अगर दूसरा sacrifice नहीं हो रहा है, his utility will change. His utility will not remain same. His utility will actually increase. We want to have the same utility, and therefore consumer has to sacrifice one commodity, and then only he can add another commodity. My underline the word same utility is very important in this concept. So the rate at which he compensate the sacrifice by unit gain in another commodity is marginal rate of substitution. क्या बोला मैंने? The rate at which a consumer compensates sacrifice in one unit by gain in another, right, commodity is called as marginal rate of substitution. He is gaining additional unit of X. He is sacrificing like commodity Y. So rate at which, right, he will sacrifice Y, he will increase X, he will gain X, but satisfaction remains same, right? That rate is MRS, marginal rate of substitution of X for Y. Whenever I say MRS X for Y, X is a commodity in which you are gaining, and Y is a commodity which you are actually sacrificing, and it is change in the Y upon change in the X, that is sacrifice upon gain. It is also the slope of the indifference curve. So MRS is slope of indifference curve. As we sacrifice, right, one commodity, we add another commodity, the tendency to sacrifice decreases. And that tendency to sacrifice decreases means MRS will decrease. And that decreasing MRS gives convex shape to your indifference curve. Indifference curve is a convex to the origin, downward sloping to the right, and convex to the origin. That is first property of the indifference curve. There are 5 properties. First property, it is a downward sloping to the right. इसका मतलब है एक कमोडिटी डिक्रीज होगी, दूसरी कमोडिटी इंक्रीज होगी, या अगर एक कमोडिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी कमोडिटी इंक्रीज होगी. So it gives, like you can say, right, negative relation. Like y axis पे sacrifice होगा तो x axis पे gain होगा, अगर x axis पे sacrifice होगा तो y axis पे gain होगा. ठीक है? So it is downward sloping to the right. This is first property. Second property is it is convex to the origin, and it is convex to the origin, right? Is why? Because MRS is diminishing. And why MRS is diminishing? उसके 2 reasons है. First reason है, as you gain one commodity, you have to sacrifice another commodity, and as you are going on a sacrificing,
the tendency to sacrifice decreases, and that tendency to sacrifice less like results in diminishing MRS. That is first reason. And second reason, the commodity X and commodity Y are not perfect substitutes, and therefore the rate of substitution keeps on changing, actually it decreases. In case of perfect substitutes, the rate of substitution MRS is a constant. It can be anything. It can be 1:1, it can be 2:1, it can be 1:2, it can be 1:10, it can be anything. It can be anything. However, that rate will be constant because they are perfect substitute. And if you have to maintain the utility, same utility, you have to maintain that rate of substitution. So in case of perfect substitute, the MRS is a constant and you get a straight line. You get a straight line. However, generally the commodities are not perfect substitutes, and therefore we get a downward sloping curve and not a straight line. समझ में आ रहा है? Then, so that is the reason behind convexity or diminishing rate of MRS. उसके बाद, the third feature was in two indifference curves can never ever intersect. When I say two indifference curves can never ever intersect, I mean a combination cannot lie on two indifference curves. A single combination cannot lie on two indifferent curves. A combination lies only on a single indifference curve. कोई भी combination उठाओ, that will be a part of a only one indifference curve. Because अगर एक combination दो IC पे है, मतलब वहां पे दो ICs intersect कर रही होगी. एक common है, दो आईसीज में अगर एक कोई कॉम्बिनेशन कॉमन है, मतलब वहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या तो टेंजेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा. समझ में आ रहा है? इफ एक सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट इज अ कॉमन बिटवीन द टू कर्व्स, मींस दोस टू कर्व्स एटलीस्ट टचेस ईच अदर. टेंजेंट एक दूसरे को करते होंगे या इंटरसेक्ट करते होंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज द थ्योरी विल बी प्रूवन रॉन्ग. समझ में आ रहा है? So two indifference curves cannot intersect each other itself means a given combination can never lie on two indifference curve. A combination will be part of only one indifference curve. That was my third property of the indifference curve. My fourth property of the indifference curve was indifference curve can never touch either of the axes. Why? If it touches, suppose y-axis, it means x commodity is 0. There is only y commodity. Means you are buying only y commodity and you are not buying commodity x, and therefore there is no combination. You have only one commodity. If it touches x-axis, means there is a commodity x, but y commodity is 0. Again, we are not following the combination. We want the combination of two commodities, and therefore we assume that, or it is a property, the indifference curve will never touch either of the axes. Then the last property, जो सबसे important property, one of the important property, is higher the indifference curve is higher the satisfaction, lower the indifference curve is the lower satisfaction. उसके reason क्या होता है? Why higher indifference curve or why any combination on higher indifference curves gives higher satisfaction than any combination on lower indifference curve is very simple. The combination which lies on higher indifference curve will have either more of x or more of y, or both more quantities of x as well as y. And therefore हमने assumptions में देखा था, any combination which has more quantity will be always preferred by the consumer over the combination having less quantity, because more quantity will give you more satisfaction. वो assumption हम यहाँ पे apply करेंगे, and therefore any combination which lies on a higher IC will give you more satisfaction. And therefore every consumer wants to be on highest indifference curve. When I bring more than one ICs on a single graph, more than one IC,
That graph is called as indifference curve map. उसको क्या बोला जाता है? IC map. IC map depicts, it shows the picture of the taste and preferences of a given consumer, and the consumer wants to be on highest indifference curve. ये सब हमने indifference curve के theory में समझा. उसमें से एक पॉइंट मेरे से मिस हुआ था जो मैं अभी कवर करने वाला हूं. मैंने अभी आपको दो इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में बोला था. एक जो हम देखते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट कर्व इज एप्लीकेबल फॉर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. फिर मैंने दूसरे की इंडिफरेंस कर्व आपको एक्वाफिना एंड बिस्लेरी का एग्जांपल देके समझाई थी, जहां पे एमआरएस इज कांस्टेंट एंड वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. वो इंडिफरेंस कर्व इज ऑफ राइट योर perfect substitutes. And what if the goods are perfect complementary goods? तो indifference कर्व कैसे मिलेगी? I will try to explain you. ठीक है? So let me share my screen. वो मैं समझाने जा रहा हूं. ठीक है? Okay. मैं जब भी मेरे फ्रेंड के साथ तुलसी बाग जाता था का एक एक्सपीरियंस है मेरा. तुलसी बाग लड़कियों को पता होगा. तो जिस फ्रेंड के साथ मैं जाता था, एक बिहेवियर में समझाता हूं. शी ऑलवेज वांटेड एवरीथिंग मैचिंग, मतलब हर चीज मैचिंग. इयर रिंग को लग के फिर बैंगल्स, हर चीज, मतलब आप पूछो मत. नाउ एग्जाम्पल, तो अगर उसने एक चीज ली ना, उसके रिलेटेड जो भी चीजें मैचिंग है ना वो लेती थी. मतलब उसका एक पूरा स्टडी रहता था कि मुझे इस ड्रेस के साथ ये सब चीजें चाहिए. अब जो भी रहेगा. नाउ अगर ये है, इन दैट केस, अगर एग्जाम्पल, मुझे वो लड़कियों की इतनी सारी चीजों का पता नहीं है, बट मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर सपोज उसने इयर रिंग्स ली ना, उसके साथ और एक कुछ तो लेगी वो उसके रिलेटेड. मेरा काम कुछ नहीं है, मैक्सिमम टाइम तो बिल पे करना ही मेरा काम होता था. ठीक है? सो एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट वेरी क्लोजली. तो अब मैं उसके रिलेटेड एक एग्जांपल, उससे मैंने एग्जांपल लिया था, और जब मैंने देखा उसको कि हर चीज, मतलब एक उसने एक कमोडिटी ले ली तो दूसरी कमोडिटी डेफिनेटली लेगी उसके रिलेटेड. ठीक है? सो दे आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मतलब वो बोलती थी कि अगर ये है तो इसके साथ ये होना ही चाहिए. सो अब देखो क्या हो रहा है. सपोज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल फिर मैंने मेरे सोच के, मतलब ये मैंने राइट उस, जब मैंने वो सोचा कि यार अगर ये चीज लेती है तो उसके साथ ये चीज भी कंपलसरी वो लेती ही लेती है. तो अगर उसको दूसरी चीज नहीं मिलेगी तो शी वोंट बाय दिस थिंग. अब जो कुछ भी हो सकता है. लाइक एग्जांपल, इयर रिंग्स दो होते हैं ना. अगर आपके पास खाली एक है तो एक से काम नहीं चलेगा. यू रिक्वायर बोथ, दोनों होने चाहिए. दिस इज कॉमन सेंस. सो मैं एग्जांपल देता हूं आपको शूज का. सपोज आप राइट, जब आप शूज परचेस करोगे, थोड़ा आपको ऑड भी लगेगा एग्जांपल, बट जब आप शूज परचेस करोगे, एक पेयर ऑफ शूज होता है बराबर, मतलब एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला. सपोज दिस इज लेफ्ट लेग शूज एंड दिस इज राइट लेग शूज. ठीक है? नाउ एग्जांपल, इफ यू बाय, अगर आपने एक लेफ्ट का बाय किया, आप बोलोगे सर हम खाली लेफ्ट लेग का शूज क्यों परचेस करेंगे, दोनों करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू बाय वन लेफ्ट leg ka shoes, you will also buy one, right? Which one? Right leg shoes. अगर आप ये बाय करोगे तो आप ये भी बाय करोगे. अगर ये दो तो ये भी दो, अगर ये तीन तो ये भी तीन, अगर ये 4
तो ये भी 4। या आप हैंड ग्लोव्स का एग्जांपल ले लो, अगर आप राइट हैंड का ग्लोव्स परचेस करोगे तो आप लेफ्ट वाला भी परचेस करोगे। ये 2 लोगे तो ये भी 2 लोगे, अगर ये 3 लोगे तो ये भी 3 लोगे। सॉक्स का एग्जांपल ले लो, अगर आप एक सब आप बोलोगे सब पेयर में ही मिलता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिलता तो पेयर में ही है ना, एक एक तो नहीं मिलता ना। हाँ, कोई लोग सिंगल भी परचेस करते हैं जो हैंडीकैप वगैरह हो सकते हैं वो लोग। सो कैन आई से जैसे जैसे मेरा वाई इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा एक्स भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मेरा वाई इंक्रीज होगा मेरा एक्स भी इंक्रीज होगा। या अगर मेरा वाई डिक्रीज होगा तो एक्स भी डिक्रीज होगा। सो यू गेट राइट L-shaped convex curve. You get L-shaped convex curve. So this is the indifference curve. Indifference curve of perfect complementary goods. मतलब एक कमोडिटी लोगे तो दूसरी भी लोगे, तीसरी लाइक और एक लोगे तो ए भी और चाहिए। सो इसमें ये होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वन कैन से राइट, या आप अगर ये एग्जांपल आपको सुटेबल नहीं लगता है तो आप बोलो कि दो परफेक्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गोस टुगेदर एक्चुअली। सो उनके केस में इंडिफरेंस कर्व इज लाइक दिस, लिख लेना। जनरली द क्वेश्चन इज ओनली वन क्वेश्चन इसमें, indifference perfect complementary goods have dash dash indifference curve. It is L-shaped convex to the origin. L-shaped convex to the origin. To origin. Perfect complementary goods. मैंने आपको समझाया था राइट इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। एक एल शेप्ड रहेगी, वो एल शेप किसकी है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। दूसरी रहेगी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स perfect substitutes, उसके केस में इट इज लाइक दिस। एक्चुअली इट शुड नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस, बट मैं निकाल रहा हूं। इट शुड नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस, राइट? सो दिस इज गुड एक्स एंड गुड्स वाई, और कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई, यहाँ पे भी कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई। सो इन दिस केस इट इज इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एंड जो हम नॉर्मली ऑब्वियसली इट इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन कि आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स देखोगे या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखोगे। जनरली गुड्स मे बी कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, और दे मे बी सब्स्टिट्यूट बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एंड उनके केस में, मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के केस में आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मिलता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है? दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। दिस इज जनरल गुड्स, ठीक है? दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बस। सो क्वेश्चन पूछा जाता है एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इंडिफरेंस कर्व पे रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डैश डैश काइंड ऑफ इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बस एक ही क्वेश्चन। दूसरा, सब्स्टिट्यूट के केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में लिखा जाता है राइट, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स marginal rate of substitution is dash dash, it is constant, it is constant। और एक उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है in case of perfect substitutes the indifference curve is dash dash, it is a straight line, downward sloping straight line। then and इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, if you move downward MRS decreases obviously, if you move upward what do you think? Type your answer। if you move downward on if you move downward
ऑन इंडिफरेंस कर्व एमआरएस डिक्रीज होता है, ये तो 2 दिन से हम समझ रहे हैं कि एमआरएस डिक्रीज होता है, एमआरएस डिक्रीज होता है, एंड उस वही रीजन है कॉन्वेक्सिटी के लिए. बट इफ यू मूव अपवर्ड, तो व्हाट यू थिंक, राइट? इफ यू मूव अपवर्ड ऑन ए गिवन इंडिफरेंस कर्व, तो एमआरएस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? व्हाट यू थिंक? What do you think? If you move upward on a given indifference curve, MRS will be increasing, MRS will be decreasing, MRS will be constant, none of the above. What do you think? Hmm? The answer is still decreases. Answer is still decreases because if you are moving upward on a MRS, if you are moving upward on a indifference curve, in that case, x-axis becomes sacrificing axis and y-axis becomes gaining axis. And you have to find out ratio of, now in this case, change in x upon change in y. Generally हम बोलते हैं कि it is change in the y upon change in the x because हम downward आ रहे हैं, तो y is a sacrificing, x is gaining. But जब हम upward move करते हैं, तो in that case position change हो जाती है, y becomes gaining good and x becomes sacrificing good. So in that case, my ratio, yeah, my MRAS is marginal rate of substitution. I will say y on x. Now I will not say x on y. I will say y on x. Y is a gaining. जो आप gain कर रहे हो, x is a sacrificing. जो sacrifice कर रहे हो. So ratio is sacrificing upon gaining, and it will be decreasing only. So बहुत बच्चे increasing लिख के आते हैं. So कहाँ पे तो लिख लेना. You move upward or downward, MRS is always decreasing. You move upward or downward on a given indifference curve, MRS is always and always, right, decreasing. ठीक है, next आगे. Increasing नहीं अनीशा मैम, it's decreasing only. In that case, actually, I need to change the diagram, और I need to x एक्सिस बन जाएगा y एक्सिस बन जाएगा x एक्सिस. अगर आप मैं उसको ठीक से प्लॉट करता हूं, या यू कैन फाइंड आउट दिस रेशियो, यू विल गेट द आंसर. चेंज इन द x अपॉन चेंज इन द y करना होगा इन दैट केस. ठीक है, आगे. बट मैं उसको MRS x ऑन y नहीं बोलूंगा, MRS y ऑन x बोलूंगा. बिकॉज जब भी मैं MRS लिखता हूं, तो पहले मैं गेनिंग वाला लिखता हूं और फिर सैक्रिफाइसिंग वाला लिखता हूं. आगे, ठीक है, नेक्स्ट. So these were some points MCQ oriented. Next, फिर हमने देखा बजट लाइन. बजट लाइन में हमने देखा बजट लाइन रिप्रेजेंट द बजट ऑफ द कंज्यूमर. सो बजट लाइन का इक्वेशन था, इफ कंज्यूमर नोज द प्राइजेस ऑफ टू गुड्स, कमोडिटीज एक्स एंड कमोडिटी वाई. हमने क्या अज्यूम किया है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. ही नोज द प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स. Then I can define his budget line like this. Budget line equation. Budget line can be, or right, budget line का equation मैं दे सकता हूं. Budget is equal to, budget can be less than or equal, sorry, हाँ, yes, आगे. So देखते हैं, budget can be greater than or equal to. You cannot spend more than the budget ना. You cannot spend more than the budget. So budget can be equal to expenditure और budget can be more than the expenditure. मतलब आपके पास 10,000 बजट है, तो आप एक्सपेंडिचर कितना करोगे, 10,000 या 10,000 से कम. अगर आपका बजट 10,000 का है, तो एक्सपेंडिचर विल बी सपोज 10,000 और 9,000 और लेस देन 10,000, but it cannot be more than 10,000. I will give you an example. When we were appearing for CA फाइनल, मेरी CA फाइनल की जस्ट एग्जाम हुई थी, एंड एक विकासा बोल के पुणे में, मतलब आप विकासा, ठीक है,
स्टूडेंट एसोसिएशन है एंड हमने वो फाउंड की थी. इट वाज माय फर्स्ट बैच जिन्होंने विकासा फाउंड की थी. इट वाज माय फर्स्ट बैच. पुणे में जब भी वो विकासा स्टूडेंट एसोसिएशन थी ना, वी आर मेरी बैच थी. जब हम क्लासेस में थे तब हमने वो स्टार्ट किया था विकासा. अब वो बहुत बड़ा हुआ है एंड विकासा को स्टूडेंट्स को एक बजट मिलता था. वो ट्रिप्स वगैरह, ट्रिप्स नहीं, उसको आप इंडस्ट्रियल विजिट बोलते हो, वो करने के लिए एक बजट मिलता है. जो भी बजट होगा, सपोज 1 लाख 2 लाख. एंड प्रॉब्लम ऐसे हुआ था कि तब हमारी पूरी बैच जो जिन्होंने वो स्टार्ट किया था, बच्चों में अवेयरनेस हम क्रिएट ही कर रहे थे. तो 1-2 साल से हम वो सब चला रहे थे. और और हम एग्जाम के लिए चले गए तो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की और पूरा बजट का बजट वैसे ही था. नाउ अगर आप बजट कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमें फिर से रिफंड करना पड़ता वो. एंड देयरफॉर द चेयरमैन ऑफ द पुणे ब्रांच कॉल्ड अप मी एंड माय फ्रेंड, बोले कि ये बजट है अभी अनयूटिलाइज्ड है एंड यू हैव जस्ट 1 month टू कंज्यूम इट, टू यूज इट. आप इंडस्ट्रियल विजिट करो. एंड आई रिमेम्बर पूरा 1 मंथ एग्जाम होने के बाद माय आर्टिकलशिप वाज ओवर. मैं एग्जाम दी थी. एग्जाम के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ हम डेली इंडस्ट्रियल विजिट करते थे. हमारा ड्राइवर फिक्स था, हमारी गाड़ी फिक्स थी. ऐसी सिचुएशन थी हम गाड़ी में ही सोते थे बहुत बार. सुबह जल्दी निकलते थे, रात को लेट आते थे पुणे में. सो स्टिल वी डिडंट यूज द बजट. हमारा पूरा बजट यूज ही नहीं हुआ. हम पूरा 1 मंथ ऑलमोस्ट घूम ही रहे थे. और हम बच्चे भी वही सब सब फाइनल अपियर वाले सब हमारा ही ग्रुप. क्या एक गाड़ी में 30-35 बच्चे सबको लेके. एट द एंड यू हैव टू शो दैट यू हैव यूज्ड इट. स्टिल वी कुडंट मीट द बजट हमारा, राइट. सो मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड द बजट or expenditure will be less than the budget. So I can always say my budget will be equal to or greater than the expenditure. And what is the expenditure? You have to buy two commodities, commodity X and commodity Y. And for that you have to pay the prices. So expenditure on commodity X is price of commodity X multiplied by quantity of commodity X. This is expenditure on commodity X. Consumer has to buy the two commodities. Price of commodity Y multiplied by quantity of commodity Y. So this is expenditure on X, commodity X. This is expenditure on commodity Y, and this is your total budget. बराबर. Suppose I assume consumer knows the prices of two goods. Suppose price of X is example 10, price of Y example 5, and his budget income is 100. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मैंने कल समझाया फिर भी मैं समझा रहा हूं बिकॉज मुझे बजट लाइन में और चीजें समझानी है. कल हमने बजट लाइन फॉर्म की थी. सो यू हैव टू टेल मी द क्वांटिटीज दैट आई कैन बाय with this budget and with this given prices. So whenever they tell you budget line, you must know three things. One, your budget. Second, price of commodity X and price of commodity Y. ये तीन inputs आपके पास होने चाहिए. Then only you can find out your budget line. ठीक है. So now if I say quantity of commodity X and quantity of commodity Y, if I decide to buy only X, if I decide to buy only X, I don't want anything Y. ऐसे हमें कॉम्बिनेशन चाहिए. बट मैं बजट लाइन जब भी हम निकालते हैं, हमने ग्राफ निकाला होगा ना, आपने लाइन ड्रॉ की होगी, तो आप एक X को एक बार 0 रखते थे, Y को एक बार 0 रखते थे. तो यही मैं कर रहा हूँ. So now I am keeping Y 0. Now I am keeping Y 0 means I am whatever income or whatever my budget is 100 rupees, I will spend on commodity X. मैं X पे खर्चा करने वाला हूँ. So in that case 100 will be used to buy X. X की एक यूनिट की प्राइस 10 है, तो I will say I will buy 10 units of X. So my first combination is 10 units of X, 0 units of Y. And another extreme combination, if I decide to spend everything on commodity Y, X में 0 परचेस करने वाला हूँ.
So 100 का 100 I will be using to buy commodity Y. 100 divided by 5. एक यूनिट की प्राइस 5 है. So I can buy 20 units of commodity Y. And if I plot the graph, I will get the budget line. Suppose Y, अच्छा, first is X is 10, Y is 0. Second, X is 0 and suppose Y is 20. मैंने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. ठीक है, देखते हैं. This is combination. Does it only A and B combination? No, sir. As it is a line, it has millions of the combinations. Every point on a line is a one combination of commodity X and commodity Y. There can be like, if I want to buy, example, so मैं maximum, अगर मैं पूरा का पूरा खर्चा X पे करता हूं तो 10 यूनिट परचेस कर सकता हूं. पूरा का पूरा खर्चा अगर मैं Y पे करता हूं तो 20 यूनिट्स परचेस कर सकता हूं. उसके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे. सपोज I want to buy 5 units of X. I want to buy 5 units of X. And I have to spend the entire income. Underspending नहीं हो चाहिए. So 5 units of X. X की एक की प्राइस 10 है, 5 परचेस के 50 रुपीज आपने X पे डाले. अभी भी आपके पास 100 में से 50 बाकी है. और एक Y की प्राइस 5 रुपीज है. 50 divided by 5, you can buy 10 units of Y. So this can be also one of the combination. जहां पे X is 5 and Y is 10. X is 5, Y is 10. एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि I want to buy 5 units of X. Sorry, 5 units of Y. If I want to buy 5 units of Y, so that will be 25 हो जाएगा. Y पे खर्चा 25 हो जाएगा. 100 minus 25. 100 minus 25. So 75 बचेगा and I can buy 7.5 units of X. Actually, I cannot buy in fraction, but mathematically it is a proven. So another can be 5 units of Y, 7.5 units of X. So this is suppose D. This here another combination हो सकता है E. So all this combination जो आप अभी आपको डायग्राम में दिख रहे, राइट, उसके सिवा इस कर्व पे जितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, दे ऑल कॉस्ट यू सेम, विच इज इक्वल टू 100 रुपीज. आप कॉम्बिनेशन ए परचेस करो, बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑन दिस कर्व cost you the same, which is equal to your budget, which is in this example is 100. Are you getting my point? Now, so मैंने कल एंड किया था लेक्चर को एक सेंटेंस पे. Indifference curve is a curve which gives same level of satisfaction. Any point on a given indifference curve gives same level of satisfaction, and any point on a given budget line, price line, gives you same expenditure, same budget. It costs you same. So indifference curve में कोई एक indifference curve में satisfaction same रहता है, and कोई एक budget line में your budget remains same. Any point on the budget line cost you same. तो आपको फर्क नहीं पड़ता whether you buy A or B, C, D, E, आप कुछ भी परचेस करो, you have to pay the 100 rupees only. आपको 100 rupees ही पे करने. Any point inside this curve towards origin, कोई भी point उठाओ, like this area, कोई भी point उठाओ, it is underspending. Underspending means you are not spending the entire budget. And any point which is away from that curve, away from the origin, right में, this area, कोई भी point उठाओ यहां से, this area is beyond the budget. Beyond the budget. So भले ही you want to have that combination, कोई ये combination आपको चाहिए, but you cannot buy because it is out of budget. अगर आप ये combination चाहते हो तो you can buy it, but it results in underspending. अगर आपको ये combination चाहिए, you can buy it and your
100% budget will be utilized, right? Beyond the budget. Okay? Now I will talk some of the properties of budget line with you before we study the equilibrium. Okay? Let's see. Okay. Now these properties are not specifically given in the module, but if you check other books like Taxman, etc., you will find many questions related to this, and therefore I am going to teach you. This is example my given budget line. This is my given budget line. This is your original budget line or price line. Budget line is also called as price line. Suppose you have to answer me. If your budget line, this is point A, this is point B, becomes like this. If your budget line becomes like this, or if your budget line becomes like this, what it indicates? When your budget line, right, पहले line का है A to B है, A to B है. Now your budget line is A to C. So can anyone tell me what has happened? What has happened? Can anyone type me? Your original budget line was A to B. Now your new budget line is A to C. Can anyone tell me what has happened so that your budget line has shifted? थोड़ी change हुई है. Any reason? You have to think. कब ऐसे हो सकता है? जिनका मैथ्स अच्छा है वो बोल सकते हैं मुझे. So this is commodity X. This is commodity Y. हाँ बोलो, अब सोच के बोलो. Try to understand. There is one common point. AB budget line and AC budget line में common point है. Which is that common point? A means quantity of Y has not changed. पहले जितना क्वांटिटी Y के परचेस कर रहे थे उतने ही क्वांटिटी आज भी परचेस कर रहे हो. However, quantity of commodity X has decreased. Your budget has not changed. Your budget has not changed because this point is common. ये point आपका common है. तो लिख लेना ये कहाँ पे, तो नीचे चलो, राइट. AB to AC हुई हमारी बजट लाइन. So your budget has not changed. As long as एक point common है, दो बजट लाइन में एक point common है, your budget does not change. खाली problem क्या है पता है? क्यों budget change नहीं हुआ है? Because पहले आप, what this mean? A point क्या represent करता है? Right? And entire amount is spent on Y. Entire amount or budget is spent on Y. बराबर? Means if you spend entire income on Y, you will get OA quantity of Y. You will get OA quantity of Y. Even after change, you can still buy OA quantity of Y. Means your budget has not changed. And even price of Y has also not changed. क्या हुआ है? Now, earlier you used to buy OB quantity of X. Now you can buy OC quantity of X. With the same budget, you can buy less of X. It means the price of X has increased. जब X की price increase होगी, and if you spend entire budget, what B indicates? Entire amount is spent on X. Even C also represents same. D also represents the same. You are spending entire budget. If you spend entire budget on X,
पहले आप ओबी परचेस कर सकते थे, नाउ यू कैन बाय ओनली ओसी क्वांटिटी. नाउ यू कैन बाय लेस क्वांटिटी इफ यू स्पेंड एंटायर बजट. 100 का 100 अगर आप एक्स पे परचेस करने के लिए यूज करते हो, तो पहले आप ओबी यूज कर परचेस कर सकते थे, ज्यादा परचेस कर सकते थे. नाउ यू कैन बाय लेस. इट मींस द प्राइस ऑफ एक्स हैज इंक्रीज्ड. लिख लेना. Budget is constant, but budget is same. But budget is same, but price of X has increased. इसलिए now I can buy less of the commodity X. ठीक है. What it indicates, AB to AD. अब AB to AD क्या इंडिकेट करेगा? पहले आप AB कर पे थे, बजट लाइन थी. Now it is AD. Means if you spend entire budget on commodity X, you can buy more than the previous. ये क्यों पॉसिबल होगा? बजट अगर सेम है, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन Y, आप पूरा का पूरा X ही परचेस कर रहे हो, एंड आप अब ज्यादा परचेस कर रहे हो. इट मींस राइट, बजट इज सेम but price of X has decreased, and as price of X has decreased, you can buy more of X than the previous. Are you getting my point or no? Are you getting my point or no? So ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है. सपोज आपके पास बजट 100 था, पहले X की प्राइस 10 थी. B पॉइंट इज एज्यूमिंग प्राइस इज 10. आप 10 यूनिट परचेस कर सकते थे. The price has increased to example 20. So now you can buy only 5 units. ये C point 5 units represent करता है. बजट सेम है, but now you can buy less of X. मतलब price of X has increased. If the price decreases to 5, now you can buy 20 units, which is represented by point D. Budget same है, but now you can buy more. Means price must have decreased. Are you getting my point? Similarly, अगर मैं ऐसी डायग्राम निकालता तो क्या रहेगा? This is AB. This is BC. ठीक है. Now what it indicates? This is commodity X, quantity of commodity X. This is quantity of commodity Y. This is 0, O, origin. So now you can see there is a common point B. It indicates if you spend entire amount on B, right, commodity X, you can buy OB output of B. If you spend entire amount on commodity X, you can buy OB. So even after change, I can buy OB. मतलब right, X की price has remained constant. X की price change नहीं हुई है. Even my budget has not changed. What has happened? When I moved from like BC, my original budget line was BC. Sorry, it was AB. Yeah, BA. When I moved to BC, मेरी ओरिजिनल बजट लाइट व्हाइट वाली थी, BA. Now it is yellow one, BC. Means you can see I can now buy more quantity of Y than the previous. मैं पहले Y कितना परचेस कर सकता था? OA. Now I can buy OC. Keeping the budget same, I can buy more of Y. इसका मतलब यह है कि price of Y has decreased. लिख लेना. Budget is the same, but the price of Y has decreased. ठीक है. Then if you move like पहले BA से अगर आप BD पे शिफ्ट हुए हो,
देखो बजट सेम ही है, विथ द बजट पहले आप ओए आउटपुट परचेस कर सकते थे, क्वांटिटी परचेस कर सकते थे वाई की, नाउ यू कैन बाय लेस, budget is the same but now you can buy less of, right, y commodity, x की तो प्राइस सेम है, x की तो प्राइस चेंज नहीं हुई है, it is just because y commodity महंगी हुई होगी, the price of y must have increased. So observation, अगर आप बजट लाइन के, अगर आप बजट लाइन के राइट साइड पे जाओगे तो इसका मतलब एक्स कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई होगी, एंड जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, अंदर आओगे, मतलब यू कैन बाय लेस, इट मींस कीपिंग द बजट सेम, कीपिंग द बजट सेम, अगर किसी एक्सिस पे आप राइट साइड पे जाते हो, एक्सिस पे राइट साइड पे जाते हो, मतलब कमोडिटी हैज बिकम चीपर, एंड अगर आप टुवर्ड्स ओरिजिन जाते हो, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाते हो, इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन जाते हो, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाते हो, तो इट मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ लाइक दैट कमोडिटी हैज डिक्रीज, एंड अगर आप टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करते हो, टुवर्ड्स ओरिजिन, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, इफ बजट लाइन keeping the budget same moves away from origin, means the prices have decreased, and budget line keeping the budget same moves towards the origin, इसका मतलब commodities have become costlier. So ये ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे समझाना है. उसके बाद नेक्स्ट, सपोज दिस इज द थिंग, this is your earlier budget line, this was your new budget line, and this is in revised budget. So this is BL1, budget line 1, this is budget line 2, this is budget line 3. So मुझे बोलो कौन से बजट सबसे ज्यादा है, which budget line represents highest budget, which budget line represents highest budget, BL1, BL2 और BL3, कौन सी बजट लाइन सबसे ज्यादा राइट बजट दिखाएगी. यस, सो कैन आई से देयरफॉर, अगर पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट होती है, यहां पे देखो पूरी की पूरी बजट लाइन नहीं शिफ्ट हुई थी, एक पॉइंट शिफ्ट हुआ था, या तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट शिफ्ट हुआ था या वाई एक्सिस का पॉइंट शिफ्ट हुआ था, कीपिंग अदर पॉइंट कांस्टेंट. यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, एंड जब दोनों पॉइंट्स हिल जाते हैं, दोनों पॉइंट्स हिल जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दैट केस बजट ही चेंज हो गया आपका. प्राइजेस का मुझे पता नहीं, आई कैन नॉट टेल अबाउट द प्राइजेस, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि बजट डेफिनेटली चेंज हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक पॉइंट कांस्टेंट होता है एंड दूसरा पॉइंट चेंज होता है तो आप बोलो प्राइजेस चेंज हुए, बट अगर दोनों पॉइंट चेंज होते हैं तो बजट चेंज हुआ है. प्राइजेस का मैं बोल नहीं सकता, राइट, विद द गिवन जो मुझे डायग्राम में है उससे तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा बजट चेंज हुआ है. ठीक है, सो आई विल से, राइट, इफ budget line shifts away from original, right, away from origin, means budget increases, increase हुआ है. If budget line shifts towards origin, budget decrease हो रहा है.
but generally consumers budget is fixed. Generally, as he become rich and rich and rich, his budget will increase. If he becomes poor and poor and poor, his budget will decrease. But at a given point of time, his preferences may change, but his budget does not change. क्या बोला मैंने? At a given point of time, his preferences may change, but budget will not change. ठीक है? क्लियर है? ये लिख लेना. इसमें दोनों पॉइंट चेंज हो रहे हैं. ठीक है? So now we understood the indifference curve, which talks about the satisfaction of the consumer. वो क्या चाहता है? He wants to be on highest indifference करो, ऊपर 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 ही जाना चाहता है. And budget line talks about his budget constraint. He cannot go beyond the budget. He can be on budget or he can be within budget. वो आगे नहीं जा सकता. Try to understand. अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आप सोचो, राइट, आपके विशेष कितने बड़े हैं. अगर वो बजट का कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आपके पास हर चीज होती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन विद इन गिवन बजट. क्या बोला मैंने? ए कंज्यूमर इवन दो वांट्स टू बी ऑन हाईएस्ट indifference curve, he can only if it is within his budget. So a consumer has to maximize his satisfaction with budget constraint. Budget एक restriction है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता. So now I am gonna teach you the consumer's equilibrium under indifference curve approach. ठीक है, लिख लेना consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium. So हमने लॉ ऑफ डीएमयू में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ डीएमयू इज अ सिंगल कमोडिटी अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, उसमें हमने देखा कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. बराबर? मतलब उस कमोडिटी से उसको कंज्यूमर सरप्लस जीरो मिलता है. उसका सरप्लस जीरो होता है, उस कमोडिटी का सरप्लस जीरो होता है एंड ओवरऑल सरप्लस मैक्सिमम होगा. टोटल सरप्लस मैक्सिमम होगा. मैं सेटिस्फेक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं सरप्लस बोल रहा हूं, प्रॉफिट बात कर रहा हूं. सेटिस्फेक्शन के लिए खर्चा भी करना पड़ रहा है, तो टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल खर्चा इज अ सरप्लस. सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज surplus is maximum or surplus from that commodity is zero. Means price that he has to pay is equal to utility that he gets. Price is equal to utility, MU, वहां पे हो satisfaction में. फिर हमने देखा था EMU, which is applicable to more than one commodities. Consumer should spend, to be in equilibrium, should spend his entire income on different commodities in a such a way that the ratio of the utilities to the price of the commodity remains same. That is, MU of X upon price of X should be equal to MU from Y upon price of Y is equal to MU from Z upon price of Z and so on. ये हमने EMU में देखा, again given by Alfred Marshall, again based on cardinal approach, but for a more than one commodity. And अब जो हम देख रहे हैं, हम ordinal approach देख रहे हैं, which is superior to the cardinal approach, because cardinal में हम utility measure करते हैं in utils and using the money as a measuring rod. हम money की utility constant assume करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ assumption नहीं है हमारा. हम cardinal approach follow नहीं कर रहे. We are not assuming कि money's utility is constant. No, not at all. Hicks and Allain came with a better approach, indifference curve approach, to understand the consumer's equilibrium for two commodities. For how many commodities? Two commodities. ठीक है? So हमें वो समझना है, and for that these are the assumptions. लिख लेना.
These are the assumptions. First, जो अभी तक हमने सीखा है वही assumption है. First assumption, consumer is a rational consumer. Means he wants to achieve maximum satisfaction within his budget. A consumer who tries to achieve maximum satisfaction within his budget. अंथरूण पाहून पाय पसरणे मराठीत म्हणतात. अंथरूण पाहून पाय पसरणे, दिस इज अ फ्रेज यूज्ड इन मराठी एंड वेरी कॉमन. जो आपका बजट है उसमें ही रहो. मराठी और एक कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, कभी बाद में बोलूंगा. चड्डीत राहणे म्हणतात. ठीक है. सो जो आपकी लायकी है, लायकी नहीं बोलना चाहिए वर्ड, जो आपका बजट है, मतलब जल्दी समझ में क्लिक हो जाएगा आपको अगर ऐसे वर्ड्स यूज करता हो. ठीक है. जो आपका बजट है उस बजट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज द, जो कंज्यूमर ट्राई कर रहा है, ही इज अ रैशनल कंज्यूमर. सो वी विल अज्यूम माय कंज्यूमर, माय hypothetical consumer is a rational consumer, means he is trying to achieve maximum satisfaction, means he will want to be on highest indifference curve but within his budget. Second, लिख लेना, he has a fixed money income, means he has his fixed budget, उसको पता है उसका बजट क्या है, right? Fixed money income मीन्स बजट पता है उसको. अगर उसको बजट पता है तो हम बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. फिक्स्ड मनी इनकम, which he has to spend entirely on two goods, X and Y, suppose. Means I don't want him to remain underspent. मैं उसको अंडरस्पेंड नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं उसको इस यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे रहने नहीं दूंगा मैं. Are you getting my point? He has to spend everything, means he has to be on budget line. उसको ऐसे कॉम्बिनेशन परचेस करने के लिए वो कंज्यूमर ऐसा कॉम्बिनेशन परचेस करेगा which will lie on his budget line, his price line. उसके बजट लाइन के आगे भी वो नहीं जा सकता, नीचे भी हम उसको रहने नहीं देंगे. हम बोलेंगे भाई तेरी जितनी इनकम है पूरी की पूरी स्पेंड कर, मतलब बी ऑन योर बजट लाइन. ठीक है. देन he knows the prices of goods X and Y. उसको उसका बजट पता है, उसको जो दो कमोडिटीज परचेस करना है, X and Y कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग. ठीक है. उस उनकी प्राइसेस भी उसको पता है, सो ही कैन असर्टेन हिज बजट लाइन. ठीक है. नंबर 4 assumption. ठीक है. ऑल गुड्स आर, आई टेक हेल्प ऐसे assumptions के लिए, आई टेक हेल्प ऑफ मॉड्यूल एज वेल, बिकॉज assumptions इतने याद नहीं रहते, बट कंटेंट आई नो एवरीवन, राइट. कभी कभी मैं ऐसे चीजों के लिए मॉड्यूल की हेल्प लेता हूँ. सो जब भी आप पढ़ते हो मॉड्यूल भी सामने रखते जाओ, इट्स ऑलवेज गुड, राइट. ऑल गुड्स, बट ये मैं लिख के देता हूँ, लिखते जाओ, बिकॉज ऑल दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल. ठीक है. ऑल गुड्स आर होमोजीनियस and divisible. Means every commodity of X is a homogeneous, every commodity of Y is a homogeneous. Like अगर मैं टी लेता हूं तो every unit of the tea, every cup of the tea is a homogeneous, and Y axis पे suppose मैं कॉफी लेता हूं तो every unit of coffee is homogeneous and again divisible. मतलब अगेन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल गुड्स. इनडायरेक्टली इसका मतलब होगा, लिख लेना कहां पे, तो इवन indifference curve approach is not applicable to indivisible goods. इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है, assumption में लिखा है goods are divisible, मतलब it is not applicable to indivisible goods. DMU भी applicable नहीं था indivisible goods के लिए.
ये भी एप्लीकेबल नहीं. रीजन इज वेरी सिंपल. इंडिविजुअल गुड्स हम हार्डली रिपीटेटिवली परचेस करते हैं. वी परचेस वंस ऑफ टाइम, फिर बहुत टाइम के बाद हम परचेस करते हैं. ठीक है. एंड द फिफ्थ, राइट, ओके, कंज्यूमर हैज, ये तीनों चीजें बोलते हैं. 2 and 3 talks about budget line. He knows his budget line, बराबर. And consumer has his preferences or set of preferences. Means IC map. IC map. ये assumption से we will try to find equilibrium. ठीक है. Equilibrium is always and always one point. Equilibrium is always and always one point. ठीक है. It cannot be more than one point. So एक ऐसा point ढूंढना है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी दे दे और उसके बजट में भी हो. सो यहाँ पे मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इज बजट लाइन. बजट लाइन इज फिक्स्ड. हमने क्या माना है? फिक्स्ड मनी इनकम है. सो a consumer generally has a fixed money income and therefore he has only one budget line. ऐसे नहीं कि अलग अलग बजट लाइन, एक ही बजट लाइन है. But he has many preferences. Many preferences मतलब many indifference curves. मतलब IC मैप रहेगा उसके पास. I don't know how I will draw. Now I will copy this only. Okay. Now I have to. देखते हैं. Now this is my budget line. मॉड्यूल में परफेक्ट डायग्राम मिलेगी बट मुझे एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे ध्यान देना. दिस इज IC1, this is IC2, this is IC3, this is IC4. So consumer knows his preferences, set of preferences. He has a IC map and there's a budget line. This is a budget line. BL is a budget line. ठीक है. BL is a budget line. This is one point, point A. This is another point B. Point A and point B. Point A and point B lies on same IC. At the same point, they lie on same budget line. क्या बोला मैंने? Point A and point B lie on same IC. IC1 पे. मतलब if you buy combination A, this is commodity Y and this is commodity X. If you buy combination A, you will have more units of Y, less unit of X, and if you buy combination B, you will have more units of X, less unit of Y. However, they will give you same satisfaction.
A and B lie on same IC1. Therefore, they give you same satisfaction at the same time. They lie on, right, same budget line BL, and therefore they cost you same. मतलब A परचेस करोगे या B परचेस करो, आपको सेम खर्चा लगने वाला है, एंड दोनों आपको सेम सेटिस्फैक्शन भी देने वाले हैं. सेटिस्फैक्शन के मामले में भी वो इंडिफरेंस है, एंड बजट के मामले में भी वो इंडिफरेंस है. मतलब A परचेस करते हो, बी परचेस करते हो, आपको सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलने वाला है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सेम इंडिफरेंस कर्व, एंड उसके लिए खर्चा भी सेम लगने वाला है. दिस इज अनदर पॉइंट. C is another point. ठीक है, C is another point. Okay. एक करो निकालता तो और क्लियर हो जाएगा. So I need to extend the budget line. There is no problem at all. And therefore, now this is my y-axis. चल तू ऊपर. अब देखते हैं. So now I will change the name. This is IC1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, देखते हैं. So मैंने पहले बात की, A and B gives you same utility at the same time at a same cost. Why at a same cost? Because they lie on same budget line. On similarly, point C and point D. Point C and point D, ये ले लो. ये दोनों points. They lie on IC1. They lie on IC1. Means they give you same satisfaction. वो आपको दोनों C and D से आपको फर्क नहीं पड़ता. आप बोलते कुछ भी दे दो मुझे चलेगा. Even they cost you same. Because they lie on same budget line. ठीक है. And there is another point C. C हो गया, E लेना होगा मुझे. E. अब ध्यान देना, कंज्यूमर को हमें, ए रैशनल कंज्यूमर वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है ध्यान देना. इफ ही बाइज सी और ए और ई और बी और डी, वो अगर कुछ भी परचेस करता है, ए बी सी डी एंड ई, कुछ भी परचेस करता है, he has to spend same. He has to spend the same amount. सेम अमाउंट. खर्चा सेम है. आप कॉम्बिनेशन ए उठाओ, बी उठाओ, सी परचेस करो, डी परचेस करो, ई परचेस करो, एवरीथिंग कॉस्ट यू सेम. सपोज 10,000 बजट है, सो आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ, आपको खर्चा सेम ही है. तो खर्चे के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, पांचों कॉम्बिनेशन कॉस्ट यू सेम बिकॉज दे लाई ऑन सेम बजट लाइन. दे लाई ऑन सेम बजट लाइन. ठीक है, आगे. हाउएवर, खर्चा सेम कर रहे हो बट सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है क्या? पैसे तो सेम दे रहे हो बट सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है क्या? ये देखो, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी गिव सेम सेटिस्फेक्शन. Point C and D give same satisfaction. A and B also give same satisfaction. However, A and B combination lies on IC2, which is higher to IC1. So can I say A and B
gives more satisfaction than A and B gives more satisfaction, right, than C and D because they lie on higher IC, that is IC2. देखो, A and B lies on IC2, C and D lies on IC1, and हमने देखा है कि higher the IC, higher the satisfaction. So any point on higher IC will give you more satisfaction than any point on the lower IC. C and D equal देते हैं, but they give less satisfaction than A and B because C and D on IC1, which is lower, and A and B on IC2. खर्चे तो आपको C को जितना करना है उतना A को भी करना है, जितना D को करना है उतना B को भी करना है. तो आप क्या सोचोगे, यार खर्चा तो सेम कर रहा हूं लेकिन A एंड B तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे C एंड D से, तो आप C एंड D परचेस करोगे या A एंड B परचेस करोगे? ऑब्वियसली अगर आपके बजट में है तो यू विल गो ऑन अपर IC, तो यू विल नॉट बाय C, यू विल नॉट बाय D, यू विल बाय A और B. अभी तक के डिसीजन क्या हुई है? वी विल बाय A और B ओवर C एंड D. रीजन इज वेरी सिंपल, भले ही C एंड D को मुझे खर्चा सेम करना पड़ता है बट वहां पे सेटिस्फेक्शन कम मिलता है. पैसे सेम दे रहे हो बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेस 3 के लिए जा रहे हो 300 रुपए दे रहे हो, KGF के लिए जा रहे हो 300 रुपए दे रहे हो, खर्चा तो दोनों जगह पे सेम है बट सेटिस्फेक्शन कहां पे ज्यादा मिल रहा है? KGF पे. तो विच मूवी विल यू प्रेफर? KGF will be on higher IC, like, and your race 3 is suppose on lower IC. तो आप क्या प्रेफर करोगे? सेम बजट में अगर आपको कोई दूसरा ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो आप वो परचेस करोगे ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम बजट में अगर आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप वो अच्छा प्रोडक्ट मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा है वही लोगे ना. खर्चा तो आउटले तो सेम है. सो CABEDB ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं सबके लिए खर्चा सेम देना है बट सेटिस्फेक्शन सेम नहीं है. C एंड D का सेटिस्फेक्शन A एंड B से कम है बिकॉज A एंड B लाइज ऑन हायर IC एज कंपेयर टू पॉइंट C एंड D, एंड देयरफॉर कंज्यूमर बोलेगा यार सेम खर्चा करने से अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है IC2 पे तो मैं IC2 पे रहना पसंद करूंगा ना कि IC1 पे, एंड ही विल रिजेक्ट C एंड D एंड ही विल मूव ऑन IC2. नाउ आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैं और उसको बोलता हूं और सोचो. वो मुझे बोल रहा है कि सर आप देयर इज ऑल्सो अनदर कॉम्बिनेशन जो मेरे बजट में E. मेरे बजट एक्चुअली देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस उसके बजट में. बट मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे. अब अभी तक हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि A एंड B परचेस करेंगे और C एंड D. अब मैं बोल रहा हूं, कंज्यूमर बोलता है इससे अच्छा और कोई है क्या जो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? मैं बोलता हूं है ना, एनी पॉइंट ऑन IC3, एनी पॉइंट ऑन IC4, एनी पॉइंट ऑन IC5 will give you more satisfaction than any point on IC2. IC2 से कोई भी ऊपर जाओ आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे बट वो आपके बजट में होना चाहिए ना. अब वो सोचता है अरे A के लिए जितना खर्चा करना है और B के लिए जितना खर्चा करना है उतना ही खर्चा E के लिए भी करना है बिकॉज E also lies on same indifference curve. सॉरी, E also lies on same budget line. E को भी उतना ही खर्चा करना है. However, E lies on higher IC, IC3 पे लाई कर रहा है. In this example, it is on IC3. So खर्चा तो सेम करना है, जितना A को करना है
जितना बी को करना है उतना ही पैसा ई के लिए भी देना है. However, E gives more satisfaction than A and B because E lies on higher IC and therefore अब वो इवन A को भी रिजेक्ट करेगा, B को भी रिजेक्ट करेगा और वो बोलेगा मैं ये परचेस करूंगा E. ठीक है. अब वो मुझे पूछता है कि E से भी ज्यादा में सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? मैं बोलता हूँ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. किधर? IC4 पे मिलेगा, IC5 पे मिलेगा, बट दैट इज नॉट विद इन योर बजट. वो पॉइंट तेरे बजट में नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज अगर आप IC4 या IC5 पे जाते हो वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा बट तेरे औकात के बाहर है, वो तेरे बजट के बाहर है. देयर इज ओनली वन पॉइंट. ये इतने सारे पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स तेरे औकात में? ये सब इसके ये वाले सब पॉइंट्स तेरे औकात में, सब पॉइंट्स. बट अगर आप राइट इवन दिस पॉइंट इज इन योर बजट, हाउएवर वो अंडर स्पेंडिंग भी है और सेटिस्फेक्शन भी कम दे रहा है, तो ये तू नहीं चूज करेगा. तू ये भी पॉइंट चूज नहीं करेगा वहां पे कोई, बिकॉज वो अंडर स्पेंडिंग है एंड उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है. यू विल चूज ओनली दिस पॉइंट. सर हम ये पॉइंट चूज करेंगे क्या? सर ई जितना सेटिस्फेक्शन देता है इतना ये वाला पॉइंट भी देता है, या सर ये वाला पॉइंट भी देता है. कैन यू बाय दिस पॉइंट? जो मैंने ग्रीन से, जो मैंने ऐसे लाइट हाथ निकाला है, they may give you same satisfaction as E, but you cannot buy them. That is out of your budget. Budget line के बाहर है. भले ही वो E इतना ही satisfaction देंगे because they lie on same IC, IC3. भले ही वो E इतना ही satisfaction देंगे but आप purchase नहीं कर सकते. So between all these possibilities, millions of the possibilities, एक ऐसी possibility है जहां पे आपको maximum satisfaction मिल रहा है with given budget, and that is E. And if you observe at this point, I can say budget line is tangent. Tangent मतलब just किस करके जाती है, is tangent to IC. यहाँ पे it is not tangent, वो intersect करके जा रही है. यहाँ पे intersect करके जा रही है, यहाँ पे intersect, यहाँ पे intersect. A, B, C, D पॉइंट्स पे वो intersect करके जाती है. And at point E, it just kisses. टच करके जाती है, टेंजेंट करके जाती है. सो कैन आई से एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन. मैंने वर्ड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं बोला है, एक वर्ड अंदर डाल दिया, पॉसिबल. एक्चुअली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो 5 पे मिल जाएगा, IC5 पे, बट वो पॉसिबल नहीं है. चाहिए तो IC4 पे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा बट पॉसिबल नहीं है. इवन दिस पॉइंट ये हाथ वाला पॉइंट ऑन IC3 वो भी आपको E इतना ही सेटिस्फेक्शन देगा बट पॉसिबल नहीं है. ये हाथ वाला पॉइंट भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा E इतना, बट पॉसिबल नहीं है. E एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा एंड वो भी पॉसिबल. वो यू कैन बाय इट, बाकी यू कैन नॉट बाय. सो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उस कर्व के बजट लाइन के आउट लाइक अवे फ्रॉम ओरिजिन है, आप भले ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन है बट परचेस नहीं कर सकते. एनी पॉइंट बिलो बजट लाइन एंड टुवर्ड्स ओरिजिन आपके बजट में बट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. बजट में बट सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. मैं चाहे तो यहाँ पे एक ही कर्व निकालता हूं, ध्यान देना. दिस इज माई बजट लाइन and this was my IC which is tangent to my right budget line. This is my budget line. Any point below my budget line मेरे बजट में है but will not give maximum satisfaction. Any point away from origin, away from budget line will give me more satisfaction but out of budget. ये वाले जो पॉइंट्स है राइट विद इन बजट but on lower IC, that is but less satisfaction.
ऑल दिस पॉइंट्स, आपको क्या बोलूं, हाँ ये वाला एरिया, ठीक है, हायर सेटिस्फैक्शन बट बट हायर सेटिस्फैक्शन बट हाँ, आउट आउट ऑफ द बजट, एंड देयर इज अ सिंगल कॉम्बिनेशन जहां पे यू गेट मैक्सिमम व्हाट इज पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो पॉसिबल भी है. So there is only one point, single point, and that single point is equilibrium, which is tangency point, tangency point of IC and budget line. It itself means जहां पे टेंजेंसी मतलब इस पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, बराबर एक ही पॉइंट है ना. अगर एक ही पॉइंट है तो टेंजेंट हुआ है तो वहां पे दोनों का, एक पॉइंट पे दोनों का स्लोप सेम रहेगा. सो कैन आई से स्लोप ऑफ आईसी is equal to slope of budget line. Slope of IC is change in the Y upon change in the X, जिसको हम बोलते हैं marginal rate of substitution of X on Y. Slope of IC and slope of budget line. Slope of budget line, ये जो budget line है इसका slope होता है, ये जो budget line है इसका slope होता है ratio of the prices. X एक्सिस पे जो प्राइस है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पे जो प्राइस है कमोडिटी, उनकी प्राइजेस आर कांस्टेंट, राइट ना. सो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस. व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रेशियो ऑफ द प्राइस of commodity on x axis upon commodity on y axis. So, and if you remember in मैंने इसमें लिखा था, EMU में लिखा था, if you remember, consumer is a equilibrium when marginal utility of commodity x upon price of commodity x is equal to marginal utility of commodity y upon price of commodity y. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mu of x upon mu of y which is equal to price of x upon price of y. And now I can, यहाँ पे मुझे मिला है price of x upon price of y. So can I also write like this marginal rate of substitution x on y. MRS x on y is the slope of IC at that point, which is nothing but change in y upon change in x, which is also equal to at equilibrium. This is at equilibrium, not everywhere. It is at equilibrium. At equilibrium point. Which is the equilibrium point? It is the tangency point of IC and budget line. ठीक है? At that point, the slope of IC and slope of budget line are equal. What is the slope of IC? It is a MRS at that point. MRS at that point, which is change in the Y upon change in the X, sacrifice upon gain. That is sacrifice upon gain. This is price of X upon price of Y. Slope of budget line. Prices of the commodities are fixed. हमने देखा है. He has a fixed income. He has a fixed prices of the commodities, and then we derive the budget line. So prices of the commodity X and Y are fixed. 10 and 5 example. तो उनका ratio is slope of budget line. ठीक है? And यहाँ से मुझे पता चल रहा है Px upon Py is mu of X upon mu of Y. एंड इसलिए उस दिन जब मैं आपको मॉड्यूल दिखा रहा था उसमें ये फॉर्मूला था, मैंने बोला था मैं एंड में समझाऊंगा वो. सो
A consumer is said to be in equilibrium under indifference curve approach when he gets maximum possible satisfaction. क्या बोला मैंने? He gets maximum possible satisfaction. Maximum satisfaction means and possible satisfaction मतलब within his budget he is on highest IC. Within his budget he is on highest IC. He भले ही IC4 and IC5 gives more satisfaction as compared to IC3 or point E, but that is outside the budget. Maybe point C, point A, point B, and point D gives you same utility, same satisfaction. Sorry. Point C, point A, point B, and point D cost you same kharcha hai. However, they give you lesser satisfaction than E. There is a single point. इक्विलिब्रियम एक ही होता है, हमेशा याद रखना, फिर वो कंज्यूमर का हो या प्रोड्यूसर का हो, इक्विलिब्रियम एक ही हो सकता है. There is a single point which gives you maximum possible satisfaction. Possible मतलब it is within your budget, on your budget line. Because हम कंज्यूमर को पूरा खर्चा करना, हमारा assumption है कंज्यूमर will spend entire income. So it has to be on your budget line. And right, वो टेंजेंट होना चाहिए आईसी पे. So there cannot be 2 points. Tangency can be 1 point. समझ में आ रहा है? So a consumer is said to be in equilibrium, right, when the IC curve is tangent to budget line or budget line is a tangent to IC curve. आपको जो बोलना है बोलो. At that point, slope of the budget line and the slope of IC is equal. Itself means slope of IC at that point, equilibrium point, is a MRS. Actually, पहले ही मैंने बोला कि slope of IC is a MRS, marginal rate of substitution of X for Y, that is change in the Y upon change in the X at that point, right? And slope of the budget line is a ratio of the prices of commodity X upon commodity Y. So price of X upon price of Y. I can also say price of X upon price of Y is nothing but marginal utility of X upon marginal utility of Y. I have borrowed it from the EMU, law of EMU. And this is my condition of equilibrium. और जो हमने लिखा है इनिशियल में वहां पे चलो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं. हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समराइज किया था. वहां पे इनिशियली उसमें हमने 2 इक्विलिब्रियम के कंडीशंस लिख लिए हैं. अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखने जा रहे हैं. यस, यूटिलिटी एनालिसिस. ओ, यहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखना है ना, इंडिफरेंस कर्व में. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is budget line is tangent to IC or IC is tangent to budget line. That is slope of IC is equal to slope of BL budget line. That is, अब मैं वो पूरा लिखता हूं, marginal rate of substitution of X on Y is equal to sacrifice upon gain. कभी मत भूलना, it is sacrifice upon gain, which is nothing but change in the Y, एक Y axis पे, change in the commodity in X gain, and which is slope of budget line is price of X upon price of Y. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट हो, अंडरलाइन कर रहा हूं, वहां से प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y. यहाँ पे मेरा वो चार्ट कंप्लीट हो गया. दिस इज यूटिलिटी एनालिसिस. लेट मी हाइड माय वीडियो, आपको पूरा देखेगा. दिस इज यूटिलिटी एनालिसिस. कंज्यूमर्स बिहेवियर.
This is the summary of the entire unit. So consumer behavior we study as a utility analysis. Utility is a want satisfying capacity. Alfred Marshall came up with the cardinal measurement approach. Higgs and Allen came up with the ordinal measurement approach. Right, for single want, for single commodity or single service, right, we follow law of DMU, under which consumer is said to be in equilibrium when the utility of a commodity is equal to price of the commodity. Right, he also, like Alfred Marshall also came up with the another law of EMU, in which he studied the consumer equilibrium, right, in respect of different commodities when consumer spends his income on buying different commodities under cardinal approach. And according to that, the consumer is said to be in equilibrium when he spends his income on different commodities in a such a way that ratio of the utilities is equal to ratio of the prices, or ratio of utility to the price of the different commodities is the same. Higgs and Allen came with a better approach under which they decided not to measure the utility in the numbers. Cardinal measurement possible नहीं होता है. Constancy of marginality of money भी, because अगर आपको utility measure करना है तो कुछ तो measuring rod चाहिए, and measuring rod is money, utils, that is money में हम measure करते हैं, right? And therefore we decided to keep utility of the money as a constant under कार्डिनल अप्रोच. अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम यूटिलिटी अगर हमें मेजर करनी है तो हम यूटिल्स में मेजर करेंगे, एंड उसके लिए हम मेजरिंग रॉड मनी मानेंगे. अगर आपका मेजरिंग बेसिस, मेजरमेंट यूनिटी अगर चेंज होता है तो एवरीथिंग विल चेंज, एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू चेंज द यूटिलिटी ऑफ द मनी, एंड इसलिए वहां पे अजम्पशन था कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी. राइट, ही डिड अवे, हिग्स एंड एलन डिड अवे विद दैट assumption. वो बोला कि ये irrational assumption है, and they decided to measure it ordinally. उन्होंने बोला consumer can give the preferences, consumer can give the degrees, consumer can give the orders, right, between the commodities, but consumer cannot measure it, and therefore indifference curve. And under indifference curve, first we must understand what do you mean by indifference curve, what do you mean by budget line. And जब मैं indifference curve and budget line को साथ में लेके आ गया, I got, right, what I got equilibrium. And what is that equilibrium? The tangency point of the IC curve and budget line. Sir, why you take only single budget line? जैसे आपने IC curves अलग-अलग लिए, because consumer may have different preferences, but consumer's income is fixed, his budget is fixed, and therefore, right, and therefore, right, oh, एक second, हाँ. So therefore I will say, right, कंज्यूमर के इनकम फिक्स रहेगी, उसका बजट फिक्स रहेगा, बट उसके प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, एंड देयरफॉर देयर इज आईसी मैप. सो आईसी मैप में यू विल फाइंड डिफरेंट आईसी कर्व्स, बट मैंने आईसी कर्व का नॉमेनक्लेचर लाइक IC1, IC2, IC3 दिया बिकॉज आई कुडंट मेजर द यूटिलिटी. आई कैन नॉट से IC 10,000, IC 12,000 बिकॉज, राइट, अगर मैं यूटिलिटी मेजर करने लगा तो आई एम नॉट फॉलोइंग ऑर्डिनल अप्रोच. सो मैं IC1, IC2, IC3 ऐसे नाम दे रहा हूं, एंड देयर इज सिंगल बजट लाइन, एंड जहां पे वो बजट लाइन कहां पे. और हमने एक और चीज देखी थी, आप बोलोगे सर जो टेंजेंसी पॉइंट है उस पे दूसरी कोई कर्व टेंजेंट नहीं करेगी क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए सिंगल पॉइंट, मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन एक ही आईसी पे लाई कर सकता है, दो आईसी पे नहीं, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. अगर वैसे होता है तो आईसी कर्व आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज रॉन्ग. समझ में आ रहा है? सो the tangency point of budget line and indifference curve is, right, is your equilibrium. There is one question, though consumer had multiple source of income, still he will have proper budget line. मैंने आपको बोला है obviously his income will be changing, his budget line will be changing. मैं बोल रहा हूँ at a given point of time. हम जब कंज्यूमर का स्टडी कर रहे हैं तब हम ये अज्यूम कर रहे हैं. इफ यू कीप एवरीथिंग कांस्टेंट देन इकोनॉमिक्स लॉज विल नॉट नेवर अप्लाई. ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स लॉज ऑलवेज कम्स विद एन assumptions and limitations. So we have to study with that jurisdiction कि ये चीजें कांस्टेंट रहेगी तो हम स्टडी करेंगे. इफ हिज बजट लाइन इज एवर चेंजिंग कंटिन्यूअसली, हर वक्त चेंज हो रही है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम. सो हमने अज्यूम किया है कि his money income at a given point of time is same. The prices of the commodities are also same. Actually prices may change,
बट हम मानते हैं कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर आल्सो सेम एंड देन राइट हमने उसका इक्विलिब्रियम ढूंढा. सो दैट इज एन assumption. इसलिए मैंने पहले assumption में वो लिख के दिया. ठीक है. Obviously, if his money income increases, try to understand. Right. Let me again share my screen. Last 5 to 10 minutes, not more than that. We are done with everything. But एक और मुझे important point discuss करना है. ठीक है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. Suppose today, right? This is your recent budget line. ठीक है. अब ये इधर उधर जा रहा है, वो जाने दो, समझने का ट्राई करो. This is your equilibrium point. And this is another IC. If your budget increases, your equilibrium will shift to this point. Because as your budget increases, as your income increases, your budget will increase. And you will move to the higher indifference curve. कल जाके और budget increase होता है. Your indifference curve, your equilibrium will be this. It to suppose. कुछ भी नाम दे दो. So as you become rich and rich and rich, you can afford to be on higher and higher indifference curve. समझ में आ रहा है? And as you become poor and poor and poor, you will shift to the lower indifference curve. तो आपको equilibrium आपका change हो जाएगा. But at any equilibrium point, you can always find that there is a single point. एक ही ऐसा point रहेगा पूरे indifference map में जहां पे आपके IC curve आपके बजट लाइन को टेंजेंट करेगी. वही आपका इक्विलिब्रियम है, दूसरा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. वही पॉइंट आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूं. पॉसिबल आई मीन दैट इज विद इन योर बजट. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले बहुत ऊपर पॉइंट्स है, बट वो पॉसिबल नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉसिबल वाले बहुत नीचे पॉइंट्स है, बट वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है. एक ही ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन देता है. ठीक है. The last point that I want to discuss for the day इसके related है. लिख लेना. I need to remember that. लिख लेना. Let me remind. मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, बट उसका क्वेश्चन का लाइक स्ट्रक्चरिंग कैसी थी वो मुझे क्लिक होने दो. ओके. This is equilibrium. This is point A. This is point C. This is point A. This is point C. A, E, and C give same satisfaction. However, A and C are out of the budget. They are not within the budget. E is within the budget and that is tangent. So it is equilibrium. You have to tell me हर A पे स्लोप अलग रहेगा, B पे E पे स्लोप अलग रहेगा, C पे स्लोप अलग रहेगा. स्लोप कहां पे ज्यादा होगा? A पे ज्यादा होगा,
ई पे ज्यादा होगा या सी पे ज्यादा होगा? कहां पे स्लोप ज्यादा होगा? यू हैव टू टेल मी जल्दी। मैं पूछ रहा हूं कि एट देयर आर 3 पॉइंट्स ए, ई एंड सी, स्लोप सबसे ज्यादा कहां पे होगा? ए पे होगा, ई पे होगा या सी पे होगा? स्लोप कहां पे सबसे ज्यादा होगा? स्लोप मतलब एमआरएस। मैं जब आईसी की बात कर रहा हूं, स्लोप मतलब एमआरएस। एमआरएस सबसे ज्यादा कहां पे होगा? यू हैव टू टेल मी। ए पॉइंट पे, ई पॉइंट पे या सी पॉइंट पे? इतने कल परसों से यही डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे होगा? चलो जल्दी टाइप करो, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे होगा? और जो फर्स्ट टाइम इको कर रहे हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रिवाइजिंग इट, रिपीट कर रहे हैं, मैं उनसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता। जो नए बच्चे हैं, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, उनके लिए ओके। देयर इज वन क्वेश्चन, एक गौरीश बोल रहा है सर स्लोप विल बी सेम। नो, स्लोप विल नॉट बी सेम, बिकॉज ए पे स्लोप ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, राइट, देन ई, एंड ऑब्वियसली देन सी। सबसे ज्यादा स्लोप ए पे रहेगा, उससे कम स्लोप ई पे रहेगा, उससे कम स्लोप सी पे रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। बिकॉज एज वी मूव डाउनवर्ड ऑन ए इंडिफरेंस कर्व, नीचे आते हैं तो स्लोप डिक्रीज होता है, एमआरएस डिक्रीज होता है, एंड दैट गिव्स कॉन्वेक्सिटी। सो ए पे स्लोप ज्यादा है ई से, ई पे स्लोप ज्यादा है सी से। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, राइट, हाँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, suppose this is my point P, this is point Q. Now you can say point P, point E and point Q के slope same है, because it is straight line. It is a straight line, इसका slope same है। जो भी है, the slope is price of ये commodity X है, ये commodity Y, this is not price X, this is quantity X, X की price upon Y की price, that is the slope. So slope of P, slope of E and slope of Q is same. However, slope of A, E and C are not the same. Are you getting my point? Are you getting my point? Now, if a consumer is on point A, if consumer is on point A, that is MRS X on Y is greater, right? MRS is greater than, oh, yeah, ऐसे बोलता हूं, कंज्यूमर इज ऑन इंडिफरेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 मिनट खाली। ये कंज्यूमर इज पॉइंट ए, बराबर। यहां पे मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, बराबर। स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। एट दिस पॉइंट ए पे ई का, ई से ज्यादा स्लोप कहां पे? ए पे। आर यू समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? एट पॉइंट ए स्लोप ऑफ आईसी is greater than slope of budget line. At point E दोनों स्लोप सेम है, बट एट पॉइंट ए, मतलब सपोज बजट लाइन का स्लोप 3 है एंड आईसी का भी स्लोप 3 है एट पॉइंट ई, बट वी नो ए पे स्लोप ज्यादा रहेगा। सपोज ए का स्लोप 5 है, सो कैन आई से 5 इज ग्रेटर देन 3? यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। any point above, right, above equilibrium point on IC has, IC का स्लोप ज्यादा रहता है बजट लाइन से। एंड सी पे क्या रहेगा? अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप 3 से कम रहेगा, 2। एंड बजट लाइन का स्लोप इतना ही रहेगा ना। बजट लाइन का स्लोप एवरी पॉइंट पे सेम रहता है। सो कैन आई से यहां पे slope of IC is less than slope of budget line. Example, slope of budget line is 3.
मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज 3, मतलब यहाँ पे ये 3 है और वहां पे स्लोप ऑफ आईसी भी 3 है, तो ये 3 से ज्यादा है, सपोज इसका स्लोप 5 है, ये 3 से कम रहेगा, इसका स्लोप 2 है. स्लोप ऑफ बजट लाइन is 3, slope of IC at 0.5, point A is 5, so can I say at point A slope of IC is greater than slope of budget line. At point C slope of IC is 2 which is less than slope of budget line which is 3. बराबर है, अप्रूव हुआ, आगे. सो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है, when slope of IC is greater than slope of budget line, मैं यहां पे ले रहा हूं, when slope of IC is greater than slope of budget line, मतलब आप इक्विलिब्रियम के कहां पे हो, ऊपर हो, ऊपर. टू बी इन इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड डू, मतलब कंज्यूमर को ए से सी आना है, ए से ई आना है, कंज्यूमर को ए से ई आना है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, कंज्यूमर को क्या करना होगा, उसको नीचे आना है. मींस कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम शुड सैक्रिफाइस कमोडिटी वाई एंड शुड इंक्रीज कमोडिटी एक्स. हाँ, अब भी मुझे याद आया, ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा होता है व्हेन स्लोप ऑफ बजट लाइन, सॉरी, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. अगर दोनों इक्वल है, आईसी का स्लोप एंड बजट लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम में, but it is not equal, so consumer is not in equilibrium, and slope of IC is greater than slope of budget line, that is he is on upper portion of IC. अब अपर पोर्शन बोलो या इज अपवर्ड, राइट, अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से कंपेयर करो तो इज ऑन अपर पोर्शन, ठीक है. सो यहां तक ये जो सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स यहां से यहां तक, इन सब पॉइंट्स में स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन. टू बी इन इक्विलिब्रियम, to be in equilibrium, लिख लेना, this is last point and our discussion is end, right, we'll get over. To be in equilibrium, consumer should decrease quantity of y and should increase quantity of x. उसको नीचे आना है ना, अगर इसको a से e आना है, so in diagram, right, that is a to e आना है, उसको a to e आना है, इसलिए मैंने डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है a to e. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया. सो वो पॉइंट ए पे जब लिखा गया है स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब ही इज ऑन ए अपर पोर्शन, इक्विलिब्रियम से ऊपर है, वो सेम कर्व पे है बट ऊपर है, ऐसे पकड़ो. तो उसको नीचे आना होगा, इक्विलिब्रियम आने के लिए नीचे आना होगा, नीचे आना है मतलब उसको y कम करना होगा, x इंक्रीज करना होगा, बराबर. वेन उल्टा, वेन slope of IC is less than slope of budget line. IC का स्लोप बजट लाइन से कम है. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों का स्लोप बजट लाइन आईसी का स्लोप सेम रहता है. बट अगर आईसी का स्लोप कम हुआ है, मतलब आप इक्विलिब्रियम के नीचे आए हो, इक्विलिब्रियम के नीचे हो आप, समझ में आ रहा है, दैट इज ही इज ऑन बिलो पोर्शन. और ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूं ना, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा. मैंने पहले आईसी पे रिसर्च किया है इसके लिए. आईसी मतलब सॉरी स्लोप, मुझे स्लोप में भूल गया था, फाउंडेशन के बाद किसने स्लोप पूछा है, ठीक है. व्हेन स्लोप ऑफ आईसी, एंड जब मैं स्टूडेंट था मुझे किसने नहीं सिखाई है, व्हेन स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, ही इज ऑन बिलो.
टू बी इन इक्विलिब्रियम उसको ऊपर जाना होगा। अब कंज्यूमर शुल्ड मतलब उसको मेरे डायग्राम में कहां से कहां जाना है, सी से ई में, ई पे जाना है। शुल्ड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वाई एंड शुड डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्स, लिख लेना। एंड यहाँ पे मेरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का डिस्कशन खत्म हो जाता है। दिस इज माय इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, बट देयर आर क्वेश्चंस, यू शुड बी प्रिपेयर्ड राइट इन अ सच वे दैट अगर ये आपको स्कोरिंग करना है तो आप इसके छोटी छोटी चीजों पे आपने सोचना चाहिए। एंड इसमें टारगेट होना चाहिए 70 to 80 मार्क्स मिनिमम। ये आपका ये सब्जेक्ट आपका पूरा टेंशन निकाल देना चाहिए। एंड सबसे लास्ट वाला पेपर है, अगर ये अच्छा गया तो आपकी छुट्टी भी अच्छी जाएगी, ये भी याद रखना। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं, ये पेपर आपको लाइक पेपर होने के बाद यू शुड बी हैप्पी, राइट? एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल। सो अगर ये लास्ट पेपर है और ये अच्छा जाता है तो आपको, अगर पहला पेपर एक बुरा भी गया होगा तो इतना आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे चलो ये कवर कर देगा मेरा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, इन दैट केस आई विल मूव अपवर्ड। इक्विलिब्रियम में जाना है तो मुझे ऊपर जाना होगा, मुझे इक्वल स्लोप करना होगा, मुझे इक्वल स्लोप करना होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। Some students were asking me, sir, what is for the Sunday's test? Chapter 2. Chapter 2, demand, then elasticity, supply, elasticity, consumer, DMU, EMU, indifference curve. Tomorrow I will be taking demand forecasting, so वो भी रहेगा। ठीक है, so every, and that is for 100 marks and 2 hours time limit। टाइम लिमिट लगेगा, याद रखना। आप जैसे पेपर स्टार्ट करोगे ऊपर टाइम दिखेगा आपको, एक एक मिनट माइनस होता रहेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। ओके, विल यू शेयर द आंसर्स ऑफ नोट्स? एक सेकंड रतन, अपने आंसर रेडी है ना वो, ABCD? हाँ ठीक है, ओके, आई विल शेयर राइट नाउ। 10-15 मिनट में मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं सम ओके, जिनको नहीं समझा दे कैन वेट। मैडम देखो ध्यान देना, E point is equilibrium point जहां पे slope of IC and slope of budget line is equal. Slope of IC and slope of budget line is equal. And we have understood जैसे जैसे हम IC के नीचे आते हैं स्लोप कम होता है, MRS कम होता है, मतलब स्लोप कम होता है। सो A पे स्लोप ज्यादा होगा देन E एंड C पे स्लोप कम होगा देन E। A का सबसे ज्यादा स्लोप है, E का सबसे ज्यादा, राइट, E से A का स्लोप ज्यादा है एंड C का E से कम है। एंड उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इतना तो क्लिक होना चाहिए, बिकॉज स्लोप ऑफ आईसी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब उसको क्या करना होगा सो दैट, राइट, सो दैट, ऐसे सोचो ना, आईसी का स्लोप ज्यादा है देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो अगर उसको इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको आईसी का स्लोप क्या करना होगा, कम करना होगा। देखो स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, उसको स्लोप ऑफ आईसी कम करना होगा सो दैट वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अगर उसको स्लोप कम करना है, आईसी का स्लोप कम करना है, तो उसको नीचे आना होगा। नीचे आना है मतलब व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए, देखो पॉइंट ए पे यू हैव दिस मेनी यूनिट्स ऑफ वाई एंड दिस मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स। At this point you have this many units of y and these many units of x, so you have to decrease y, you have to increase x, ये मैंने लिखा है। दूसरी सिचुएशन, when slope of IC is less than the slope of budget line, इक्विलिब्रियम में जाना है तो आपको स्लोप ऑफ IC इंक्रीज करना होगा, तो आपको अपवर्ड मूव करना होगा, कंसीडरिंग दिस डायग्राम।
ठीक है, आपको ये नहीं करना है डायग्राम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं करना है, ठीक है, वही रख के हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो आई मीन मुझे अब एक्स सैक्रिफाइस करना होगा एंड वाई गेन करना होगा, दैट इज द मीनिंग, ठीक है, ठीक है। I think I'm clear. If no, then still you can ask me, right? You can ask me at any point of time. ठीक है? So हमें दोनों इक्वल होने चाहिए. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मोर देन स्लोप ऑफ आईसी. स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन. तो हमें स्लोप कम करना होगा. स्लोप कम करना है मतलब हमें आईसी के नीचे आना होगा. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन. तो हमें इसका स्लोप इंक्रीज करना होगा, हमें ऊपर जाना होगा, ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली योर आंसर, ठीक है. ओके, थैंक यू.